Hello students, welcome to your channel Zebish English Classes. I hope you all are good and fine. And in today's video lecture, I'll go ahead with this topic of tense as I had promised in the previous video lecture, in which I had taught how this tense topic has come up from the part of a speech verb. And tense is also called time period, which in Hindi we say समय काल. So this is time period, tense. Now we have to understand first of all, see if I sum up the previous thing that I had taught you, I will tell you कि part of a speech जो verb होता है action word, तो क्योंकि वो एक action word है या फिर it is a doing word, तो in this it happens कि जो हमारा action होता है, जो हम करते हैं, that keeps on changing from time to time, and that's why action words always come with respect to time. It means whenever you have to use a verb in a sentence, that verb form will change according to the time. It will always come with respect to time. So here we have to understand that time period, कि how many time periods can be, कितने time periods हो सकते हैं. एक वर्ब को, एक एक्शन वर्ड को आप कितने टाइम पीरियड्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो लेक्चर. सो बेसिकली देयर कैन बी थ्री टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस, देन यू हैव पास्ट टेंस, एंड देन यू हैव फ्यूचर टेंस. टॉकिंग अबाउट दिस, I can say, you know it very well, it is known to you कि basically हम तीन टाइम पीरियड्स में जीते हैं. जो आज है वो प्रेजेंट है. Something which is present today is present. Something which has already passed, जो गुजर चुका है, हो चुका है, that is past. And something which is yet to happen, that means it will happen tomorrow, day after tomorrow, in future. It is called a future tense. तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक डिवीजन टाइम पीरियड का. आज का प्रेजेंट टेंस, जो बीता हुआ कल है पास्ट टेंस, जो आने वाला कल है फ्यूचर टेंस. नाउ what we have to understand is the subdivision of these basic time periods. कि प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट टेंस या जो प्रेजेंट टाइम पीरियड होता है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट्स में. बिल्कुल वैसे ही हम पास्ट टेंस को या पास्ट के टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट्स में. एंड इन द सेम मैनर फ्यूचर टेंस को भी या फ्यूचर टाइम पीरियड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट्स में. नाउ व्हाट आर दीज फोर पार्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, we can say there can be four parts of present tense, which are as follows: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Now how, let me tell you. See, present tense can be of four parts: simple present, that is present indefinite also we say, then present continuous, C is present perfect, and our last one is present perfect continuous. Now we have to understand these four. What is simple present? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. दिस मच यू अंडरस्टैंड. अब इसमें चार पार्ट्स कैसे हो गए और वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट, जो जनरली होता है, what happens in general in day-to-day life. You know what happens daily, you can say. What happens daily? What happens in day-to-day life? What happens daily or in day-to-day life? जो generally होता है. What happens?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो अभी हो रहा है, प्रेजेंटली। एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, आई मेक वीडियो लेक्चर्स एंड आई पोस्ट देम ऑन यूट्यूब। तो आई मेक वीडियो लेक्चर्स विच मीन्स कि आई जनरली डू दिस ऑलमोस्ट एवरी डे, या इन जनरल आई डू दिस। प्रेजेंट टाइम में दिस प्रेजेंट टाइम includes a wide time period, you can say, कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। सो दिस इज व्हाट आई डू लाइक इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड, ये इस साल इस ड्यूरेशन में, लाइक दिस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियोस तो हम बनाते हैं, बट अभी हम प्रेजेंटली इस वक्त हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हम तब तक तो वीडियो रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो आई मस्ट बी टेकिंग माई डिनर। सो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते आई एम मेकिंग वीडियो लेक्चर, क्योंकि हम बनाते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर उस कॉन्टिन्यूएशन में हम बना नहीं रहे हैं। हाँ, इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई एम मेकिंग, इसका मतलब कि जो काम उसी वक्त एकदम प्रेजेंटली कॉन्टिन्यूएशन में होता है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, एक चीज क्या कॉमन होगी आपके समझने के लिए, कि सबको आपको है में रखना है। ये सब कुछ है में चलेगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर ये है में। अच्छा, है का मतलब क्या है कि कोई चीज थे में नहीं है, कोई चीज था में नहीं है, या होगा में नहीं है, सब चीज प्रेजेंट में है। सो you being an Indian student, I think can understand it very well through this Hindi word, कि सब कुछ है में है, मतलब प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंप्लीट तो हो गया लेकिन पास्ट में कॉम्प्लीशन नहीं हुआ, उसका अभी हुआ है, रिसेंटली। इसका मतलब कि हम उसे ये नहीं कहेंगे कंप्लीट हो चुका था, हम उसे कहेंगे कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स व्हाट हैज बीन डन, ठीक है, व्हाट हैज कंप्लीटेड, जो हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये जो है आपको देख के ही लग रहा होगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है, जनरली होता है, डेली बेसिस पे होता है। आजकल हम वो चीज कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये होता है। जैसे हम वीडियोस आजकल बना रहे हैं, आजकल हमने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो हम ऐसा करते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो प्रेजेंटली कर रहे हैं, जो हो रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है। परफेक्ट का मतलब समझिए। एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ पार्टी, you see yourself in the mirror and get ready. There is a point of time when you say perfect. That means now I'm looking perfect to go for the party. This look is perfect. Perfect means done. जैसे ही आपने अपने आप को मिरर में देख के कहा perfect, इसका मतलब ये कि यहाँ पर अब आपका जो चल रहा था रेडी होने का प्रोसेस, here it comes to an end and you are ready to go. Because here you think कि हाँ अब ये परफेक्ट है, ये एकदम ठीक है और अब ये यहाँ पर खत्म होता है। सो परफेक्ट का मतलब वो काम हो चुका, कंप्लीट हो गया, लेकिन हो चुका था नहीं, हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, वो कंप्लीशन प्रेजेंट में हुआ है, इसीलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर काम कंप्लीट होने की बात हो रही है तो फिर तो वो पास्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि कंप्लीशन तो हो चुका है। बट आपको ध्यान ये रखना है जब पास्ट की बात होगी सॉरी,
तो वो होगा कंप्लीट हो चुका था। यहां पर कह रहा है कंप्लीट हो चुका है, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। दैट मीन्स completion has taken place in the present time. Like you're ready to go for the party, as I told you for an example, and you saw yourself and said perfect. It means you will say I have got ready. आप present में कहेंगे, आपका ready होना, आप ये नहीं कहेंगे हम ready हो चुके थे। अगर आपसे सब घर वाले कह रहे हैं जल्दी चलो निकलो देर हो रही है, you will say हम ready हो चुके हैं। तो ready होने का काम तो complete हो गया है, बट कब? Presently. That is present perfect. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये जो है ये ऊपर के जो दो टेंस है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये इसका कॉम्बिनेशन है। डोंट यू थिंक सो कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर सम अप करके हमारा इज इक्वल टू क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट and which type of sentences will be an example for this particular tense, present perfect continuous. So let us analyze and understand this one. Present perfect continuous. Present perfect की बात करें तो perfect मतलब done, complete हो चुका है, as I have told you. लेकिन अगर हम लोग continuous की बात करें तो continuous तो कह रहा है कि हो रहा है, चल रहा है, continuation में है, तो फिर don't you think that it is giving a very strange or weird sort of a meaning? यहाँ पर collide नहीं कर रहे दोनों, आपस में clash नहीं कर रहे कि ये पार्ट कह रहा है कि complete हो चुका है और continuous वाला कह रहा है कि अभी काम हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि काम हो चुका भी है और हो रहा भी है? This is what we need to understand कि परफेक्ट मीन्स हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स हो रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक काम हो चुका है और हो भी रहा है? नाउ हियर द थिंग इज दैट एक काम जो आधा हो चुका है और आधा हो रहा है, दैट मीन्स एक काम का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट अभी कॉन्टिन्यूएशन में है। Such a task will be kept in this present perfect continuous. Example, I suppose कि हम आपको अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है आधे घंटे पहले, मान लीजिए आधे घंटे पहले मेरी क्लास स्टार्ट हुई। So I have started teaching you an hour ago. Suppose कर लेते हैं। तो अगर हम आपको आधे घंटे पहले से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम आपको कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं, इतनी बातें बता चुके हैं और अभी भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। माई टीचिंग इज स्टिल इन कॉन्टिन्यूएशन, विच मीन्स कि मेरा जो टास्क है टीचिंग का राइट नाउ, इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, चल रहा है। So this task of teaching will be kept in this particular tense where I will say I have been teaching you for half an hour. Like this. तो इसके लिए you can say कि what has half completed and remaining half is still in continuation. So what has half completed and remaining half of it is still in continuation, that will be kept in this particular tense, that is present perfect continuous. What has completed in the present time itself and remaining part is still in continuation in the present time itself, and that's why it will be kept in this particular category, which is present perfect continuous. I hope you understood this much. So if you have understood this much कि ये है क्या, इसका analysis क्या है, then I will go ahead because I want to explain you every single thing properly. तो in this video lecture तो अभी I will explain you कि present tense जैसे explain किया वैसे ही past tense क्या है, future tense का subdivision, everything, and then I will go ahead
with their detailed explanation and how verb forms, change and take according to the different time period or different tense. So now I have come to this past tense, and as I have told you that there are 4 subparts of the present tense, in the same manner there are 4 subparts of the past tense. As you can see here, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. These are the 4 divisions of your past tense, and I have told you सिंपल प्रेजेंट में वो चीजें आती हैं जो जनरली होता है. इन द सेम मैनर पास्ट टेंस में वो चीजें आती हैं जो होता था या हुआ था, होता था या आप कह सकते हैं जो हुआ था. सो दैट कम्स इन सिंपल पास्ट. जो चीजें पास्ट में हो रही थी, सी ट्राई टू कोरिलेट विद द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस से कोरिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे. प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स थे. सिंपल प्रेजेंट, जो जनरली होता है, व्हाट हैपेंस. सिंपल पास्ट, जो जनरली होता था. वहां पर आई हैड आस्क्ड यू टू टेक नोट ऑफ है. हियर आई वांट यू टू टेक नोट ऑफ था. यहां पर हर चीज था में है, चाहे हुआ था, चाहे हो रहा था, हो चुका था, आधा हो चुका था, आधा हो रहा था. दिस इज द ओनली डिफरेंस. सो सिंपल प्रेजेंट जो जनरली होता है, और सिंपल पास्ट जो जनरली होता था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था, जो हो रहा है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, जो हो रहा था. पास्ट में कॉन्टिन्यूएशन में था. लाइक मान लीजिए कल हम इस वक्त पढ़ रहे थे, तो इस वक्त yesterday I was studying. क्यों हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं और कल की बात कर रहे हैं जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है. तो कल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पास्ट की बात है. बीते हुए कल की बात है, पास्ट की बात है. लेकिन हम इसी वक्त पढ़ रहे थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काम इस वक्त कल कॉन्टिन्यूएशन में था, हो रहा था. दैट मीन्स व्हाट वाज हैपनिंग. तो कॉन्टिन्यूएशन में था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन प्रेजेंट में नहीं है, हो रहा है नहीं, हो रहा था. तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा. फिर जो हो चुका था, बीत चुका था, what had happened, वो past perfect में आ जाएगा. perfect मतलब completion. अगर present perfect की बात है मतलब completion present में हुआ है, हो चुका है, और past perfect की बात है मतलब completion past में हुआ था, हो चुका था. इसके बाद हम आते हैं past perfect continuous पे. अगर हम इसको कंपेयर करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में हमने ये कहा था कि जब आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा काम कंटिन्यूएशन में है. दैट मीन्स आई हैव टोल्ड यू कि जैसे वीडियो लेक्चर में हम आपको आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं. तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. लेकिन कोई ऐसा टास्क जो पास्ट में जिसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका था और पास्ट में ही उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट कॉन्टिन्यूएशन में था, तो इस तरह के केसेस को हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. आपको बहुत क्लियर ऐसे नहीं समझ में आएगा अनलेस आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स. तो इसके आगे अभी हम आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हो जाएगा कि जिसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका था और कुछ पार्ट कॉन्टिन्यूएशन में था, मतलब चल रहा था. तो हो भी चुका था कुछ पार्ट और कुछ पार्ट हो रहा था. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल कि क्या है ये, एंड देन आई विल टेल यू कि how I'll go ahead with this. Now let us understand this through these examples.
See, present tense and past tense. I have kept here present tense and I have kept past tense over there, and I have taken examples of each of the parts of present tense as well as past tense to help you understand them separately and also to help you differentiate between them. So see, simple present का example, present tense 4 parts: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. In the same way, past tense, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. These are the 4 parts of each of these present tense and past tense. Now let us see. In case of simple present tense, when we see the example, simple present, वो काम जो generally होता है. Example, I teach. मेरा क्या प्रोफेशन है? हम क्या करते हैं? I teach. मैं क्या करती हूँ? I teach. So I teach, simple present. अब अगर हम present time की बात करें, एकदम इस right now की बात करें कि इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त I am teaching you. So present continuous मतलब इस वक्त ये काम continuation में चल रहा है presently, तो I am teaching. Present perfect, ये काम हो चुका है. एग्जाम्पल, जैसे जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा एंड आई विल लीव फ्रॉम हियर, आई विल गो डाउनस्टेयर्स, सो आई विल से आई हैव टॉट. हम पढ़ा चुके. दैट मीन्स कि ये पढ़ाने का जो काम था ये प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. For example, as soon as I finish teaching you, as soon as I complete it, I will say I have taught. That means I have completed teaching you this particular lecture in the present time itself. So completion has taken place in the present time. Then present perfect continuous, कि I have been teaching for 10 years. That means हमने पढ़ाना आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी भी ये पढ़ाने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में है. It means कि I have already taught a lot. इससे पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं बहुत सालों तक और अभी भी पढ़ा रहे हैं. तो एक पार्ट, कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इतने सालों से जो पढ़ाया है वो हो चुका है और अभी भी पढ़ा रहे हैं. So I have been teaching for 10 years. ये चीज़ें अभी हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये सेंटेंसेस फ्रेमिंग होती कैसे है, एवरीथिंग. लेकिन ये अभी सिर्फ आपको इसलिए बताया है ताकि आप प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करके थोड़ा सा समझ जाए, और स्पेशली ये लास्ट वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आप समझ जाए कि कैसे इस किन चीज़ों को, किन टास्क को या किन वर्ब्स को आपको इन टेंसेस में रखना है. उस पर्पस के लिए आई एम टेलिंग यू लाइक दिस. अभी इसके आगे बहुत प्रॉपरली बताएंगे. नाउ लेट अस सी सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में आई टोल्ड यू जो काम हो चुका था, होता था. So I taught, right? I taught her. मान लो there is a girl and whom I have already taught and she used to come to my place to study. So I'll say I taught her like this. ठीक है? या I have taught her means हमने उसको पढ़ाया है, हम पढ़ा चुके हैं उसको. Okay. बट सिंपल पास्ट में हैव नहीं यूज करेंगे, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. सिंपल पास्ट के लिए हम कहेंगे I taught. That means हम पढ़ाते थे. ओके, मैं पढ़ाती थी, ये मीनिंग होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स आई वॉज टीचिंग, क्योंकि ये काम हो रहा था, मैं पढ़ा रही थी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गो डाउन स्टेयर्स एंड समवन आस्क्स मी कि कहाँ थी तुम, व्हाट वर यू डूइंग, आई से आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी. उस वक्त मैं पढ़ा रही थी, उस वक्त, उस समय, उस टाइम कौन सा काम कॉन्टिन्यूएशन में था, पढ़ाने का. पास्ट परफेक्ट, जो काम हो चुका था. एग्जाम्पल, आई हैड टॉट. लाइक अगर कल की कोई बात हो रही है, मतलब बीते हुए कल की, येस्टरडे की, और उस पर हमने ये कहा आई हैड टॉट, मतलब उस वक्त तक तो मैं पढ़ा चुकी थी. आई हैड टॉट बाय 10 o'clock. दैट मीन्स उस वक्त तक मैं पढ़ा चुकी थी, वो काम कंप्लीट हो चुका था. दैट इज पास्ट परफेक्ट. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या काम चीज़ें आएंगी कि जो आधा हो चुका था पास्ट में ही और फिर कुछ हो भी रहा था पास्ट में ही. एग्जाम्पल,
if I say I had been teaching for 10 years by 2020, क्योंकि 2020 has already passed and now 2021 has started और हम सिर्फ 2020 तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 2020 तक अगर हम देखें तो हम 10 सालों से पढ़ा रहे थे। 2020 तक देखें या 2020 तक काउंट करें तो हमें पढ़ाते हुए 10 years हो गए थे। दैट मीन्स कि हमने जो टीचिंग का काम स्टार्ट किया था 10 साल पहले, तो कुछ पार्ट हमने पढ़ा भी लिया था, पढ़ा चुके भी थे और कुछ जो है जो टीचिंग की प्रोसेस वो कॉन्टिन्यूएशन में थी, राइट। और 2020 में जाके वो 10 साल कंप्लीट हुए। इसका मतलब 2020 तक की सिर्फ बात करें तो हम पढ़ा भी चुके थे बहुत सालों तक और पढ़ाना कॉन्टिन्यूएशन में भी था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल बन जाएगा कि आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years by 2020. So I hope you have understood with these examples thus far here, and now I will go ahead with future tense and I will tell you what are the types of future tense. They are the same types and I'll explain that to you as well, and then with example, and then I will dive into this topic of tense properly once you are aware कि ये सब है क्या. But if I continue in this video lecture itself, so this video lecture will actually extend quite a lot and will become quite big and monotonous as well. So I don't want that to happen. So I will carry on in another video lecture and I'll wind it up here. I hope you have understood this much at least. Please help me find out if you are understanding and it is helping you anyhow. Thank you so much for watching.